Good morning, friends. In the 10th class physics, today I am going to take the numericals of a series and parallel combinations of resistors. I have sent some statements to you with their solutions. So see this statement. What is written? Draw a schematic diagram of a circuit. So read carefully this statement. What is given in this statement? There are three cells of 2 volts. These are the cells of 2 volts. See how we will draw this diagram. See, one cell is here, second is here, and third is here. Now I have to connect them. This way we will connect. Okay. Then 3 resistors are given. 1, 2, 3. With the key we have to connect them. The resistance of these resistors are 5, 8, and 12. Okay, this is the first complete. Now the second statement, see, they have written that redraw the above circuit is redraw karo and connect one ammeter here in the circuit. So I am connecting one ammeter. This is the ammeter. This is the positive of the battery, so positive will be in this side. Okay, and we have to connect the voltmeter also. We have to find out the voltage across this 12 ohm. So positive is here, positive connected positive, positive connected with the positive. So बेटा बड़े ध्यान नाल सुनना है. सानू करना की है, इस 12 ओम दी वोल्टेज पता करनी है. एक 2 वोल्ट दिता है, मतलब टोटल बन गया 6 वोल्ट जो इस सर्किट दे विच गया होया. सीरीज कंबीनेशन दे विच असीं देखिया कि जो करंट सारे सर्किट हुंदा है वही सारे विच रजिस्टरां दे विच हुंदा है. पहली गल, और वोल्टेज सबनां नूं अपनी अलग अलग मिलती है. इनू कितनी मिली है वो पता करना है. कदे भी सीरीज कंबीनेशन का तुहानूं न्यूमेरिकल आ जाता है तो तुसी सबसे पहले टोटल सर्किट दा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कटोगे. टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनी, फिर देखो भाई करंट कितना बन गया टोटल सर्किट का. वही करंट पहले रजिस्टर च होएगा, दूसरे च होएगा, तीसरे च होएगा, सारे च होएगा. वही करंट नू लैके फिर तुसी किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज कर सकते हो. देखो कि हुण जिवें इत्थे असीं कहांगे भी टोटल रजिस्टेंस कितनी बनी, सीरीज कंबीनेशन 5, 8 एंड 12 तीनों में प्लस हो गया. कितना हो गया बेटा 25 ओम की टोटल बन गई. टोटल करंट कितना हो गया सर्किट दे विच, टोटल करंट आई इज इक्वल टू बी ओवर आर. बी किदा टोटल सर्किट दा बी कितना है 6. टोटल सर्किट दी रेजिस्टेंस कितनी है 25. देख रहे हो हुण करंट कितना बन गया, इन्हां नूं कट लोगे 0.52 एंड दिस इतने एम्पीयर बन गया टोटल करंट. हुण यही करंट आई इहदे च है, यही इहदे च है, यही इहदे च है. वोल्टेज इत्थे कितनी आई, इसनूं कितनी मिली है आई आर. इहदा करंट और इहदी रेजिस्टेंस मान लो ये R3 है, तब 0.24 into 12 समझा रहा. सो वोल्टेज across 12 ohm IR3 0.24 into 12. इसको तुसी मल्टीप्लाई करो, ठीक है. 2.88 वोल्ट आ गया. हुण क्वेश्चन पूछा होवे भी इनू कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो नेचुरली तुसी कहोगे कि कितनी शो करेगा, कितनी रीडिंग आएगी. ठीक है. नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल्स मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं इसका आंसर. अगर सीरीज दे विच कोई सर्किट दिता है तो किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज पूछी है तो सबसे पहले सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस पता करना, आरएस पता करनी, टोटल वोल्टेज तो इत्थों पता लग जाती है, टोटल करंट पता लग जाएगा.
ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲੇ ਚ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਚ ਉਹੀ ਤੀਜੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੋਲटेज ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲटेज ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। Now I am coming to the third numericals. See the statement. Just the equivalent resistance. It is given that in A part 1 ohm and 10 to the power 6 ohm. See here. 1 and 10 to the power 6. They are connected in parallel combinations. They are connected in parallel combinations. Okay. So what will be the equivalent resistance? We know this is the formula 1 over R1 plus 1 over R2. So 1 over R1 is 1. 1 over R2 is equal to 10 to 6. What is the LCM? 10 to 6. And here will come 10 to 6 plus 1. Meaning is what? This is if I want to take RP, then take the reciprocal 10 to 6 over 10 to 6 plus 1. Means approximately it will be 1. So the answer is 1. In a B part, they have said that you have connected one more here. 10 to the power 3. Then what will be the resultant? Again 1 over 1. 1 over 10 to 3. 1 over 10 to 6. From this formula, here one more will be added only. Then see, calculate the value 1 and this is what? Up to 3 decimals and this is up to 6 decimals. No, add them. Hello. Add them. 1.001. 01 also you can write, right? 1 over RP. Now RP reciprocals I have to calculate. Then that will be taken reciprocals 1 upon 0.00101. You can see this divided by 1 approximately its value is also 1. Okay. In a fourth numerical, see the statement here. How can 3 resistors 2, 3 and 6 are connected? बेटा इस तरह के अगर numerical आम तो देखो 2 दिखता है तो देखो 3 ohm है तो देखो 6 ohm है और सबसे पहले तो हमें चाहिए 4 ohm ना और फिर चाहिए 1 ohm। मैं अगर तो हमें कहता है कि divide करो 40 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ 7 ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ 2 1 ਦਾ 2 2 3 ਦਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਮੈਥਡ में 2 7 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ उसी तरह तुसी हिट एंड ट्राई करना है तो एक गल पता है कि इन्हां तिन्नां नूं अगर मैं रजिस्टर्स नूं सीरीज जोड़ांगा तो रिजल्टेंट 6 से ज्यादा आनी है। देखो इसका मतलब यह है कि 6 नूं तो तुसी सीरीज जोड़ ही नहीं सकते 6 से ज्यादा आ जाएगी ये तो पैरेलल दे विच है ही है 100%। ठीक है हुण हिट एंड ट्रायल मैथड अपन ने किया और असि देखा कि अगर मैं 3 ohm इत्थे लाना है इहदे नाल पैरेलल लाइन दे कितना लाना है 6 और इन्हां दा दोनी दा 1 over 6 1 over 3 रिजल्टेंट कितना बन जाना है 6 LCM 1 plus 2 3 over 6 एंड जब असि रेसिप्रोकल करांगे तो 2 वैल्यू आएगी। हुण देखो इन्हां दोनी दी जगह 2 आ अगर इस 2 ohm नूं इस 2 ਦੇ ਨਾਲ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 ohm मतलब इस तरह एक कॉम्बिनेशन होएगा। ओके ਹੁਣ आ गया 1 ohm 1 ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੋਟਾ है ਤਾਂ पॉसिबिलिटी है कि ये पैरेलल ਚ ही होंगे सारे। एक बार करके देखते हैं 100% है क्योंकि अगर तुम 2 ਨੂੰ सीरीज ला लिया ਹੁੰਦਾ सबसे घट है तो उससे भी ज्यादा वैल्यू आनी सी। ਹੁਣ ਇਹ 100% है कि ये पैरेलल ही होंगे तां ही वैल्यू 2 ਤੇ ਵੀ ਘਟ आएगी। ठीक है बेटा 1 over 2 1 over 3 plus 1 over 6 1 over RP। okay so LCM is 6 3 plus 2 plus 1 6 over 6 it is 1 and RP is equal to 1। देख रहे हो तुसी एमए हिट एंड ट्रायल मेथड्स ये सारे जिने पैरेलल च होंगे इसलिए 1 ohm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए की स्टेटमेंट देखो की कहता है कि
सबसे ज्यादा और सबसे घट कितनी रेजिस्टेंस मिलती है। देखो कई बार लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰजिस्टर ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ओम है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ओम है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ओम है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ओम भी है। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 32 ओम्स रजिस्टर्स लगाओ सर्किट च। 32 तो है नहीं, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ सीरीज च लगा सकते। समझ रहे तुम, किसी ने कहा 20 ओम लगाओ, तो तुम इन्हां दोनों ਨੂੰ सीरीज च लगा सकते हो, 12 प्लस 20। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰजिस्टर्स ਤੇ what will be the maximum resistance which you can obtain। maximum means by connecting them in series, सारे ਨੂੰ सीरीज च जोड़ देंगे, है ना। 4 plus 8 plus 24 plus 12 and you will get the total resistance 48, a maximum, right। कहते सबसे मिनिमम कितनी है, मिनिमम वास्ते ये सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ पैरेलल च जोड़ सकते हैं। सबसे मिनिमम ताही आनी है 12 and 24। see 24 is the LCM, 6 plus 3 plus 2 plus 1 9 11 and 12 and this is 1/2 and resultant is 2। सबसे कट मिनिमम जो 2 ओम मिलती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो हम बेटा, की कहते हैं कि हाउ मेनी 176 ohm resistors are required to be connected in parallel to get 5 ohm from, right। ये इस तरह करके एक करंट दे विच, एक सर्किट दे विच 5 ohm कहते तुहानू, मैं डायग्राम, एक सर्किट दे विच तुहानू 5 ohm चाहिए और तुसी एक बैटरी लाई हुई है जो कि 220 वोल्ट की है, इस तरह, ठीक है। हुण कहंदा तुसी 176 ओम दे किन्ने लाओगे कि ये इस तरह बन जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहली गल ये है कि जब मान लो तुहाडे कोल दो रजिस्टर्स ने, मान लो आर वाले, वो पैरेलल च लगे, ए बी आर, रिजल्टेड कितना बन गया 1/RP 1/R1 plus 1/R2। ये आर में आर एलसीएम आ गया, 1 plus 1 2 बन गया और आरपी कितना बन गया R/2। अगर ये 3 होंगे तो R/3 हो जाना सी, अगर ये n होंगे तो R/n हो जाना सी। तो असं इमेजिन करते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि मान लो n नंबर ऑफ 176 ओम असं कनेक्ट करना, ठीक है। तो उस टाइम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, आरपी कितना बन गया 176/n। आई होप कि समझ आ रहा है तुम्हें। जिस तरह वंस आर दी वैल्यू 176 होगी, कितने जोड़ना पड़ेगा आई डोंट नो, कितने हो जाएंगे, ठीक है। हुण ये मतलब हो गया कि इस सर्किट दे विच असि जो रिजल्टेंट आरपी बढ़िया वो 176/n। हुण सिर्फ n पता करना, ठीक है। ओम ला की कहता है, ओम ला कहता है कि R is equal to B/n, ठीक है। इस सर्किट दे विच जो आरपी है इसको तुसी 176/n कह रहे हो, वोल्टेज 220 पूरे सर्किट दे विच जितनी वोल्टेज होगी सारी कांस्टेंट मिलती है सब नानू पैरेलल दे विच एंड करंट है 5, ठीक है। 5 नाल नु कट लो, राइट। ए 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n is equal to 4। ये कह रहा कि तुसी 4 रजिस्टर्स 176 वाले पैरेलल दे विच जोड़ोगे तां तुहानू 5 एंपियर करंट मिलना है 220 वोल्ट के नाल जोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि तुहाडे कोल 24 ओम वाले दो रजिस्टर्स पए हैं, उन्हां दोनों नूं तुसीं कल्ले नूं जोड़िया, सीरीज जोड़िया, पैरेलल जोड़िया 220 वोल्ट नाल। मतलब देखो ये 24 ओम वाला है, इसनूं तुसीं 220 वोल्ट नाल सबसे पहले जोड़ लिया, तो करंट कितना आएगा ये फाइंड आउट करना है, V/R 220/24। समझ रहे हो तुसीं हुण कट लिया
ਤਾਂ ਇਹ 9.17 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਏ ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9.17 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सेम 220 वोल्ट ना 24 रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितनी बन गई दोनों को प्लस करके बन गई 48 ओम। करंट कितना बन गया V ओवर RS, V उतनी ही दे रखे ने और A 48 हो गया। ठीक है समझ रहे हो? मतलब जितना ये आया उदा होर जाके 1 to हाफ होर हो जाना 4.58 एम्पीयर करंट। फिर कहते तुसी इन्हां नूं पैरेलल च जोड़िया दोनों, ठीक है सेम वोल्टेज नाल तुसी इन्हूं जोड़िया पैरेलल च जोड़ांगे तो 1/24 1/24 ठीक है 24 एलसीएम तो आरपी जे हाफ हो जाएगा 12 ओम। समझ आ रहा है? देखो कि भाई 24 हो गया और 2 हो गया और 12 ठीक है रेसिप्रोकल लोगे तो 12 बन जाएगा। हुण करंट कितना है I = V ओवर RP। हुण जो भी ये करंट आया उसका डबल हो गया मतलब है ना तुसी कट सकते कट के यू कैन चेक 220 ओवर 12 तो ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी वैल्यूज डबल होगी इस तो 18.33 एम्पीयर्स के आ जाना है। ओके बेटा थैंक यू।